हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप सब? ठीक हो? कुसुमलता फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी बजे है 5 का टाइम होगा या तो 5 हो रहे होंगे, 5:10 हो रहे होंगे। अभी उठी मैं, उठ के मुँह हाथ धोए है और कोलगेट ब्रश करी है। और आज जो है कि नोनू का स्कूल है। नोनू को आज ले जानी है सीमी। दूध वाले कह रहा मम्मी मेरे को सीमी ले जानी है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे बहुत दिन हो गए। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है। तो कल रात को ये हमने ना मंगा के रख लिया था सारा सामान। तो मैं कहा चलो सुबह इसके लिए बना दूँगी, स्कूल में जाएगा तो ये। तो अभी दिखाती हूँ टाइम आपको। सब सो रहे हैं, यहाँ पर भी सब सो रहे हैं, नीचे भी सब सो रहे हैं। और अभी जाऊँगी मैं नीचे बनाऊँगी। पहले मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड, 5:15 हो चुके हैं। छोटा सा अलार्म लगा रखा है मैंने बिल्कुल। तो अभी आपने देखा होगा ना टाइम कितना हो रहा है। 5:15 हो रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ फटाफट नीचे। और क्योंकि सीमी में भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love, turn to peace and gloves. Now you gotta do it right now. बना दी है चाय। तो फ्रेंड, मैं ले आई हूँ चाय, तीनों की ले आई हूँ। जो है कि मम्मी की और पापा की बना के और केतली में डाल के और रख आई हूँ। हाँ, मैंने इसलिए मैं ज़्यादा मतलब शोर शराबा नहीं करा। मैंने बताया नहीं कि कैसे बनती है। और मैंने जो है कि म्यूज़िक डाल दिया उसके अंदर, क्योंकि सुबह सुबह फिर पापा बोलते कि सुबह सुबह क्या कर रही है कुसुम, किससे बात कर रही। कई बार मैं बोलती रहती हूँ ना, तो बोलते रहते हैं किससे बात कर रही हूँ। मैं किसी से नहीं कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए देखो, मेरे को ना ज़्यादा वो अच्छा नहीं लगता कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं उनको डिस्टर्ब करूँ या उनको, मुझे पसंद नहीं है। अब बच्चे भी हैं जो
छोटा वाला बेटा है, अब बोलते होगे दिखाती नहीं है उनको, तो मैं इसलिए नहीं दिखाती क्योंकि वो ना स्कूल में जाता है, वो 11th क्लास में स्कूल में जाता है। तो उसने मेरे से यही बात बोली कि मम्मी आप बनाओ, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ, बनाओ आप। लेकिन मैं जाता हूँ स्कूल में हर तरह के बच्चे रहते, कोई देख के ये बोलेगा कि यार तेरी मम्मी वीडियो बनाती है, अच्छी तरह से बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन कोई बुरी तरह से बोलेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो इसीलिए जब तक मेरा स्कूल ख़त्म नहीं होता आप मेरे को कम से कम ही दिखाया करो। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैं उसे कम से कम ही दिखाती हूँ। और बड़ा वाला है उसके तो सेकेंड ईयर के जो है कि पेपर हो चुके हैं ख़त्म, और वो अपनी गया है बुआ के छुट्टी बिताने के लिए, आएगा रक्षाबंधन पे। उसकी वो बोली मैं तो रक्षाबंधन पे लेके आऊँगी इसको। मैंने कहा चलो ठीक है। और तो वो बोलता मम्मी मुझे तो बेशक से आप दिखा दिया करो क्योंकि मैं अब फ्री हूँ बिल्कुल। उसके दोस्तों को तो काफ़ी को पता है कि शशांक की मम्मी है जो वीडियो बनाती है, ब्लॉग डालती है, तो उसके दोस्तों को काफ़ी को पता है, तो उसको वो नहीं लगता। उसको तो मैं दिखा देती हूँ, उसके पापा को भी दिखा देती हूँ, उनको तो शौक है। हाँ शौक तो छोटे वाले को भी है, लेकिन अब स्कूल में पढ़ रहा, देखो जब बच्चे बड़े हो जाते तो थोड़ी बहुत बच्चों की भी बात माननी पड़ती है। और मम्मी पापा को मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लेती, वो भी थोड़े है जो कि गांव के टाइप के अब भैया हमें इतना मत दिखाया कर। मतलब मैं ज़्यादातर तो नीचे काम वाम करने में बिजी इतनी रहती हूँ कि मैं उन्हें दिखा ही नहीं पाती। बस वो खाना उना खाते हैं तभी कभी कभी मैं दिखा देती हूँ, या कोई प्रोग्राम हुआ तब दिखा देती हूँ, तब तो सारे ही रहते हैं, साथ ही रहते हैं फ़िलहाल तो इसीलिए मैं ज़्यादा कर अकेली ही बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि मैं अकेली काम करती रहती हूँ तो मैं अकेली बनाती रहती हूँ वीडियो। और इसके पापा की भी आज है जो कि छुट्टी रहती है, सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है। तो अब ये नोनू भी उठ के ऊपर गया है, अभी नहा धो रहा है, तो अभी आएगा फटाफट चाय नाश्ता करेगा। तो इसके पापा भी चाय पी के फिर स्कूल में देखते हैं इसको छोड़ के आएंगे, तो पहले पी लेते हैं हम चाय, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। फ्रेंड आ जाओ आप भी पी लो, और फिर हम आपसे थोड़ी सी देर में मिलते हैं। तो फ्रेंड चाय पीने के बाद नोनू भी आ गया था नहा के, उसने भी चाय नाश्ता करके, और मैं भी उसके साथ ही नीचे आ गई थी। जो है कि उसका लंच मैंने टिफ़िन जो बांधा नहीं था, क्योंकि जो सुबह मैंने सीवी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैं कहा स्कूल में जब जाएगा तभी साथ के साथ बांधूंगी, इतना थोड़ी सी है ना ठंडी हो जाएगी। तो मैंने उसका टिफ़िन बांधा और पन्नी में अच्छी तरह पैक वैक कर, मम्मी अच्छी तरह डाल देना कभी स्कूल में है ना बस्ते में निकल जाए। मैं कहा ठीक है, तो मैंने अच्छी तरह से उसका टिफ़िन पैक करके और उसे दे दिया। आज ले गया है बाइक, ये देखो हमारी बाइक खड़ी नहीं हुई है यहाँ पे, तो क्योंकि आज इसके पापा की छुट्टी है ना, संडे और सैटरडे की छुट्टी रहती है, तो बाइक वो ही ले जाता है कि मम्मी सब बच्चे लेके आते। देखो किसी को शौक़ होता है, अब उसको शौक़ है इतना गाड़ी मोटरों का चलाने का, इतना शौक़ है कि वो ये चीज़ इतनी जल्दी पकड़ लेता बहुत ज़्यादा। और बड़ा वाला थोड़ा नहीं आती उसको, इतना नहीं आती, मतलब थोड़ी बहुत चलते फिरती आती है, इतनी नहीं आती जिसको जितनी छोटे वाले को बढ़िया आती है। ये बिठा के ले जा भी सकता है, ला भी सकता है खूब बढ़िया तरह से। मतलब इसे शौक़ है एक चीज़ का, जैसे शौक़ हो जाता है तो इसको शौक़ है। इस बड़ी वाली गाड़ी भी हमारी बाहर खड़ी रहती है, कई बार कहते हैं सफाई करिए, तो आगे पीछे भी देखता है चला के इधर उधर भी कर देता है, तो देखो डर तो लगता ही है, हम तो धमका ही सकते हैं। हम वही कहते हैं ना, माँ बाप अपने बच्चों को कोई एकदम से तो नहीं सिखाते, बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। तो उसे शौक़ है अपने आप का, हमारा फ़र्ज़ है उसे धमकाने का और उसका फ़र्ज़ है भाई सीखने का, तो उसे सीखने दो। थोड़ा बहुत हम भी बोल देते नहीं बेटा ऐसा मत करा कर, गाड़ी अभी तेरे को आती नहीं है, लेकिन फिर भी वो ध्यान से चलाता है बहुत। लेकिन अभी बहुत छोटा है, मतलब वो 16वीं साल में लग गया है और इतना बड़ा नहीं हुआ है चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल तो मैंने झाड़ू लगा दी सारे के, और बर्तन भी मांज दिए, रसोई साफ़ कर दी है सारी, और गंदे कपड़े थे जो भी सारे निकाल के मैंने रख दिए है ऊपर, क्योंकि आज धोऊंगी मैं कपड़े।
आज इसके पापा कह रहे हैं कि मैं धुला दूंगा, आज मैं थोड़ी हेल्प करवा दूंगा। मैं कहा चलो ठीक है, करवा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे तो करना है ही। मैं किसी का इंतज़ार तो देखूंगी नहीं कि मेरे साथ कौन करवाएगा, लेकिन सब मेरा इंतज़ार जरूर देखते हैं कि हाँ यही है तो सही कर लेगी। चलो कोई बात नहीं, मुझे तो देखो करना है ही, क्योंकि घर है मेरा। घर तो देखो औरत को कोई सा भी ना पियर वाला घर है ना ससुराल वाला घर है, बस अपने वो कैसे घर नहीं है। देखो हम पियर में जाते हैं तो घर पियर वाले क्या बोलते हैं कि भाई अब तो ये मेहमान है, मेहमान की तरह में इनकी सेवा पानी करनी पड़ती है, अब तो भाई ये पराई होगी है, दूसरे के घर की है अब तो, हैं। और जब हम अब ससुराल में आ जाते हैं, जब ये ससुराल वाले क्या बोल देते हैं कि भाई ये तो दूसरे के घर की है, हमारी थोड़ी नहीं है, मतलब दूसरे के घर से आई है। और बेटा तो ये कई बार बोल देते हैं ना कि चलो वो तो हमारा, वो तो हमारी नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है ना, बोल देते हैं, मैंने बहुत बार सुना है ऐसा बोल देते हैं। लेकिन बहू तो अपना घर समझती है। उस जब लड़की अपने माँ बाप के घर रहती है कुंवारी, जब भी वो तो उसको घर को घर ही बना के रखती है, और जब बेटी ससुराल में आ जाती है शादी होके तो बहू बन जाती है। बहू के बाद भी ससुराल को अपना घर से घर ही समझती हैं, वो तो घर को घर ही बना के रखती हैं। लेकिन पता नहीं बेचारी का घर कोई सा नहीं होता, ना ससुराल वाला उसका घर होता, ना पियर वाला उसका घर होता, पता नहीं उसका घर आखिर होता कौन सा है। वो तो दोनों घरों को ही अपना समझती है। जब वहाँ से जाते हैं, देखो यहाँ से जाते हैं, जब वो अपने ससुराल से जाते हैं अपने घर पे तो क्या कहते हैं, हम घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। और जब वहाँ से आते हैं तो क्या कहते हैं, जब भी यही बात होती है हमारी कि हम अपने घर जा रहे हैं, है ना। तो हमारे घर तो दोनों ही है, लेकिन हमारे घर तो दोनों ही है, लेकिन दोनों घर हमारे नहीं है। अब पता नहीं कैसी भगवान ने कैसा इंसाफ करा है औरतों के साथ। औरत तो मतलब हर चीज़ में अपनी क्षमता दिखा देती है, हर चीज़ में कि माँ बाप के घर भी वो अपना ही घर समझती है, खूब सबकी सेवा। उधर भी देखो सेवा पानी खूब करती है, जब ससुराल में आ जाती है फिर भी इधर भी खूब करती है, खूब अपने सेवा पानी सबकी करती है, और सारा काम खूब अच्छा करती है, सबकी इज्जत भाव करती है, आए गए की खूब इज्जत करती है, काम धंधा सही संगवाती है। लेकिन फिर भी घर वाले तो ससुराल वाले तो यही कह देते हैं कि करते करते काम भी फिर भी ये बोल देते क्या करती है सारा दिन, 2 रोटी, थोड़े से बर्तन, झाड़ू पोछा और थोड़े से कपड़े, बस सारे दिन में यही काम करती है। और काम क्या करती है। चलो कोई बात नहीं, सारे दिन में हम ये काम तो है करते हैं, तो हमें तो ये इनाम मिलता है, जवानी से बुढ़ापे तक का यही वो मिलेगा। चलो कर लेती हूँ मैं फटाफट काम। अभी मम्मी पापा आ रहे जो कि ऊपर बैठ गए हैं हॉल में, क्योंकि मैं हॉल का कल सारा ना साफ़ सफाई करी आई थी बहुत बढ़िया तरह, और छत पे भी झाड़ू लगा के आई थी सारा। मैं कहा आज कपड़े लत्ते धो लूँगी, तो 2 मंजिलों का ही काम है आज मुझे, नहीं यहाँ का और ऊपर का बस, क्योंकि सूजल भी नहीं है तो साफ़ पड़ा रहता वो बिल्कुल ही हॉल। तो फिलहाल कपड़े मैंने सारे निकाल दिए हैं सब, अब सिर्फ पोछा वोछा निकाला है, धुलाई कर देती हूँ फटाफट या कि, और करके फिर चलते हैं ऊपर, ऊपर का रह जाएगा। और आटा भी गूंदना, आटा तो मैं भूल ही गई थी, क्योंकि उसके पापा सुबह जाते हैं ना ड्यूटी, तो मुझे याद रहता है, मैं सुबह जल्दी आटा गूंद के रख देती हूँ, इनका लंच बनाना होता है ना, तो इसीलिए तो पहले पोछा लगा लेती हूँ फिर आटा गूंदूँगी। तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा फ्रेंड, कभी आपने नोटिस करा है ये चीज़ें हैं जो कि देखो, कभी लड़की है जो अपने मायके जाती है रुकने के लिए, बैग पैक करके ले जाती है कि 2-4 दिन हम रुक के आएंगे अपने घर पे, तो घर जाती है तो घर में माँ बाप के इतनी अलमारियाँ रहती है, कितनी अलमारियाँ भी रहती है, बेड भी रहते हैं, और जो है कि सिल पे भी बनी रहती है भाई कपड़े उपड़े लगाने के लिए। लेकिन इतनी अलमारियों के होने के बावजूद भी लड़कियों के कपड़े उनके अपने बैग में ही एक तरफ रखे रहते हैं, क्यों? कभी नोटिस करना ये
तो मैं कई बार दिमाग में मैं यही सोचती, मैं कहा हकीकत बात है ये। हम कभी घर जाते हैं, माँ बाप के घर में इतनी अलमारी, इतना मतलब रखने का सामान होता है, लेकिन फिर भी हमारे कपड़े हमारे बैग में ही एक तरफ में रखे जाते कि ये बहू भी, जो भाभी भी उठे वो भी उठा के रख देती कि हाँ ये दीदी का बैग है, इसमें ही रख दो। कपड़े भी धुल के भी उसमें ही आ जाते कि दीदी का बैग है ना। तो देखो अपना अपना घर नहीं है ना, अगर अपना घर होता तो अलमारियों में लग जाते कपड़े, लेकिन शादी के बाद तो अपना घर अपना ही नहीं होता। चलो कोई बात नहीं कभी नोटिस करना ये मेरी बात। तो फ्रेंड एक बात तो है कि बेटियों का दुख समझना बहुत मुश्किल है, कि बेटियों का दुख समझना बहुत मुश्किल है। वो घर भी उसका अपना नहीं जहाँ पर उसने जन्म लिया। तो बिल्कुल सच बात है। अगर आपको मेरी बातें जो मैंने वीडियो में बोली है अगर सही अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड मेरे घर का काम है जो कि निमट चुका है सारा। ये देख लो रसोई भी बिल्कुल साफ़ है, और मैंने जो सुबह सिवई बनाई थी वो भी निकाल के पतीले में रख दी थी, और अंदर का भी काम हो चुका है। और ये बैठे हुए लेटे हुए हैं, ऊपर से आ गए हैं नीचे। जल्दी बोलो गुड मॉर्निंग। Good morning. ये भी विश्राम पे है। देखो पेट कितना बाहर निकल रहा है इनका, कोई पेट अंदर करने की दवाई बता दो। ये देखो कितना बाहर निकल रहा है इनका पेट। बिल्कुल भी जिम नहीं जाते, हम सब कहते हैं तीनों माँ बेटा में गए जिम जाए करो, ये पेट अंदर कर लो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। कहते हैं खाते पीते घर के मैं कहा अच्छा जी तुम तो खाते पीते घर के हो। तो फिलहाल नीचे का काम हो चुका है सारा। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, ऊपर का काम निपटाती हूँ फटाफट। पसीने देखो कैसे आ रहे हैं, गर्मी से पता नहीं कब राहत मिलेगी। फ़िलहाल तो ना तो इस महीने में ना अगले महीने में, कहीं जाके सितंबर में थोड़ा सा सही मौसम होएगा। चलो तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फ्रेंड मेरा यहाँ का भी काम है जो कि निमट चुका है सारा। यहाँ का भी मैंने काम सारा कर दिया है, चादर वगैरह भी सब बदल दी है। ये देख लो सारी डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। और धूप आज बस ऐसी निकल रही है, धूप छाँव हो रही है। ये देख रहे होगे ना कैसी धूप और कैसी छाँव, कभी धूप हो रही है कभी छाँव निकल रही है। तो घर का काम तो मेरा फ़िलहाल तो सारा निमट गया। सारी साफ़ सफाई अंदर बाहर की, नीचे की, ऊपर की सारी हो चुकी है। टाइम हुआ है अभी 10 बजने में 15 मिनट है। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नीचे, पहले रोटी बना देती हूँ मम्मी यार के लिए, फिर लगा करूँगी ऊपर मशीन लगाने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। इतना ऐसा ना 2-3 चक्कर है, घूम जाएंगे इतना कपड़े, और फिर देखते हैं नोनू आ जाएगा फिर जब भी खाएंगे हम खाना। मैं तो तभी खाऊंगी, इसके पापा खा लेंगे, अगर भूख लगेगी तो इनको ही खा लेंगे, नहीं तो मेरे को दोनों के साथ ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर खाएगा ही नहीं, फिर वो करेगा मैं नहीं खाता जाऊँ, मेरे को भूख नहीं लगेगी। अगर मैं अकेला खाता हूँ मेरा मन नहीं करता, तो इसीलिए मुझे चाहे कितनी भूख लग रही है उसके साथ ही खाना पड़ता है मुझे खाना। कभी कदार हो जाता है जो मैं अकेली खा लेती हूँ, नहीं तो उसके साथ ही खाना पड़ता मुझे खाना। तो पहले मैं रोटी बनाया थी जाके नीचे, यहाँ पे बन रहा है खाना, रोटी बनी है, और ये दाल दिखा देती हूँ। दे पानी तना जानी और मन जानी। ये देखो हमारे पापा ने जो दाल बनाई है, दाल कहीं दिख रही है इसमें। इधर मेरी जो है कि रोटी भी बन के हो गई है तैयार, और मम्मी पापा खा रही है। मम्मी पापा खा रही है खाना। फिलहाल देखो पसीने में बिल्कुल कैसी हो गई है, बिल्कुल एकदम से बुरा हाल हो गया। तो जल्दी सी रोटी बना के और रसोई साफ़ करके फिर चलते, थोड़ा सा एसी चला के। अब थोड़ा सा 5-10 मिनट एसी के अंदर नहीं मतलब पलंग पे आराम से बैठ के थोड़ा विश्राम करके ठंडी ठंडी हवा खा के फिर बाकी का काम करेंगे। बुरा हाल हो गया पसीने में बहुत बुरा। तो जल्दी सी रोटी बना के और थोड़ी देर 5-10 मिनट एसी के नीचे बैठेंगे, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खा के, और फिर लगा के आऊँगी मशीन। जब मैं आ गई हूँ ऊपर और मैंने लगा दी है मशीन। अभी तो फ़िलहाल मशीन भर ही रही हूँ, और ये चूरा मैंने डाल दिया है मशीन के अंदर। ये ना लेके ही आते हैं क्योंकि इससे सही कपड़े साफ़ धुलते हैं बिल्कुल। अब ये थोड़ा सही बिल्कुल घुल जाएगा ना, तब इसमें सर्फ डालूँगी। और कपड़े रखे हुए हैं ये, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रही थी, मैं ज़्यादा पहले ही बोल रही थी कि थोड़े ही है कपड़े, ज़्यादा नहीं है।
तो इसके पापा बोल रहे थे कि चलो मैं हेल्प करवा देता हूँ। तो मैंने बोला, मैं कहा आप मशीन नहीं लगा सकते थे? पहले तो बोल रहे थे आप मैं करवा दूँगा हेल्प, चलो। और कह रहे यार हिम्मत नहीं हो रही मेरे कपड़े धुलाने की, मन नहीं कर रहा मेरा। मगर चलो कोई बात नहीं, देखो मेरे को तो करना है ही। मैं तो किसी से ये नहीं बोल सकती कि मेरी हिम्मत नहीं है करने के लिए, है ना। तो मुझे तो ये मेरा काम है, मुझे ही करना है, और किसी का काम नहीं है ये। हम सारे काम हमारे जिम्मे लिखे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, जब तक निभरी है निभा रहे हैं। निभरी क्या, निभाना है ही। ज़िंदगी जब तक जिएंगे जब तक निभाना ही है। चलो हमें तो भैया धोने ही, हम किसके ऊपर छोड़ेंगे काम के, वो कर लेगा। सब तो मेरे पे डिपेंड रहते हैं कि है तो सही कर लेगी, है तो सही कर लेगी। लेकिन मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ ना, मैं किसी के ऊपर काम छोड़ती कि जैसे छोड़ देती है वो अपने आप कर लेगी, है तो सही अपने आप। मैं नहीं छोड़ती किसी के ऊपर भी, चाहे कब भी पड़ा होगा ना वो भी मैं दूँगी। मैं ये नहीं सोचती कि अपने आप कर लेगी। मैं करना जो खुद अपने आप से ये नहीं सोचता कि बहू है भाई, वो भी एक अकेली लगी रहती है सारा 4 मंजिल मकान, कोई काम करना कोई आसान बात थोड़ी नहीं है एक जने के लिए। कि सुबह से 5 बजे से उठती है और सारा दिन हो जाता है इसका लगे कपड़े धोने, फिर उतार के लाने, फिर संगवाने, फिर उन पे प्रेस करनी, ये भी काम कितना हो जाता है। लेकिन वही बात है, सब कुछ कराया मिल जाता है ना, तो ये लगता कि घर में काम ही क्या है। और ये बस थोड़ा सा ही काम है, करते क्या हो तुम सारा दिन, सारा काम तो हम करते हैं, फिर भी इंजाम ये मिल जाता है। चलो ठीक है, हमें तो पता है ना हम कितना काम करते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से बस ये घुमा के और फिर जाऊँगी नहाने के लिए। खाना वाना तो अभी नहीं खाऊंगी मैं, नोनू आ जाएगा तभी खाऊंगी। फिलहाल तो भूख तो कभी लगी नहीं रही है। तो फ्रेंड नहाने के बाद जो कपड़े रह गए हैं, मैंने मशीन तो मैं लगा के चली गई थी और एक चक्कर हो भी गया है, तो फटाफट पड़े हुए हैं धो देती हूँ फटाफट इनको, क्योंकि धूप देख रहे होगे आप कितनी तेज़ निकल रही है। और जिसमें मैंने पर्दा गिर रखा है तो पर्दा भी दिख नहीं रहा है, इतनी तेज़ धूप है और धूप सारी अंदर आ गई है, इसीलिए मैंने पर्दा करा हुआ है। तो फटाफट ये भी धो के और सुखा देती हूँ ऊपर, और फिर नोनू का भी टाइम हो जाएगा स्कूल का आने का, फिर खाएंगे हम दोनों खाना। तो इसके पापा तो जाकर खा रहे खाना, कह रहे मेरे को भूख लग रही है। मैं क्या खा लो आप जाके नीचे, मगर मैं तो नोनू के साथ ही खाऊँगी जब आ जाएगा नोनू। तो फिलहाल फटाफट ये कपड़े भी धो के और घेर देती हूँ। तो फ्रेंड कपड़े भी धुल चुके हैं और मशीन भी मैंने धो दिया है, और यहाँ से भी सारे बाहर से अंदर से सारे की धुलाई कर दी है, जीना भी धो दिया है। और ऊपर सुखाया हूँ कपड़े, और शाम को लेके आएंगे उतार के, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, सूख जाएंगे। और अभी जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा ही तेज़ फ़िलहाल तो। और खाना खा के फिर करेंगे थोड़ा सा आराम। नोनू ने तो खा लिया है खाना, क्योंकि मुझे देर हो गई थी थोड़ी कपड़े धोने में। तो मैं कहा भाई तू खा ले, मैं देर हो जाएगी, मेरा इंतज़ार कब तक देखेगा, मैं खा लूँगी। तो अभी 2 या 2:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं जाऊँगी खाना खाऊँगी, खा के फिर थोड़ी देर आराम करूँगी भाई। तो फ्रेंड मेरी वीडियो में बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आ गई हूँ नीचे और आके मैंने चढ़ा दी है चाय, और इधर है जो कि आज बनेगी आलू सोयाबीन मैंने भेजी है। तो पहले पी लेते हैं हम चाय पीने के बाद सब्जी बनाने की करेंगे तैयारी। चाय मेरी बन रही है और मैंने मम्मी को भी दे दी, पापा तो कहीं गए हुए किसी काम से, और ऊपर भी भिजवा दिए इसके पापा हैं मम्मी है। तो मैं भी चाय पी के फिर सब्जी बनाने की करूँगी तैयारी। एंड इधर हो रही है अब सब्जी बनने की हो रही है जो कि तैयारी। तो प्याज लहसुन आलू भी कट चुके हैं, और ये हरी मिर्च रही, और सोयाबीन मैंने भेजी है, पहले यही तड़ूंगी। और तेल भी हो चुका है गरम, तो फटाफट सब्जी बना के और मैं ये भी रख देती हूँ। तो फ्रेंड ये देखो सब्जी बन के हो गई है हमारी तैयार, आलू और सोयाबीन की। मैंने जो है कि गूंद के रख लिया, और अभी जाऊंगी ऊपर से उतार के लाऊंगी कपड़े और फिर लगाऊंगी तय। अभी खाना तो कोई खाएगा नहीं, तो 6:30 ही हुए हैं फिलहाल तो फ्रेंड अब तो काम तो और कुछ है नहीं फिलहाल, तो अभी चलते ऊपर से पहले कपड़े उतार के लाऊंगी। तो फ्रेंड मैं
आटा और सब्जी तो मैं बनाया ही थी, और फिर ऊपर जाके मैं कपड़े तार के लाई, उनकी तह लगाई, फिर नीचे गई, फिर मम्मी के लिए रोटी बना के आई, दे के आई। मम्मी ने खा पी के और जो बर्तन थे वो मांज के और रसोई साफ़ सूफ करके और अभी आई हूँ। पर हमने तो अभी नहीं खाया क्योंकि अभी भूख नहीं लग रही है। हम तो मतलब 9:30 बजे तक, 9-10 बजे तक ही खाएंगे खाना। तो फ्रेंड अब तो कुछ काम है नहीं फ़िलहाल, तो बस अब सोना ही है। तो ये ब्लॉग फ्रेंड मैं यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना।